So I hope now everyone understood how to count. First we will name all A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, or you can name it as like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करके भी कर सकते हो. So however you want. तो इस तरह से जब भी रहता है आप फिर उसके बाद देखोगे कि A एक ट्राइंगल है, then B एक ट्राइंगल है, C एक ट्राइंगल है. So A, B, C, and then AB is also including these two one of the triangle. Then BC including these two one of the triangle, and including all three ABC is also one of the triangle. In the same way D is one of the triangle, and including AD is one of the triangle. In the same way G is one of the triangle, so DG is also one of the triangle, and ADG also one of the triangle. So this is how you can find the total one, how much. So 32 is there, so 32 total triangles will be there inside it. Okay, so this is all about that question. Now previous question is question number 3rd. Question number 3rd, I think Dhananjay have some doubts, so let us discuss how we can draw a triangle when one angle measurement is given. Okay, so 3rd question is there. Or I think he is saying कि suppose one of the triangle or two of the triangle is given, two of the angle measurement is given, then how can we find out the 3rd angle measurement, right? So suppose यहाँ पे एक question है, the two angles of a ट्राइंगल, अगर राइट ट्राइंगल दिया हुआ है या एक ट्राइंगल मेजरमेंट दिया हुआ है, देन ऑल्सो विल बी सेम. सो सपोज द टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल्स आर, आई एम टेकिंग 50 डिग्री एंड 70 डिग्री, राइट? सो नाउ इट इज आस्किंग फाइंड द थर्ड एंगल. तो अगर कोई एक एंगल निकालने के लिए बोला जा रहा है, ओके, ओनली द साइड इज गिवन, हाँ, देन वी विल सी इन आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज कि अगर साइड दिया हुआ है देन हाउ कैन वी ड्रॉ, विल सी इन आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज. सो डोंट वरी. सो फर्स्ट यू सी हाउ वी कैन ड्रॉ द थर्ड एंगल व्हेन द एंगल मेजरमेंट आर गिवन. ओके, सो वी know the sum of all the sides of a triangle is 180 degree. तो अगर मान लेते हैं एक ट्राइंगल है जिसका 50 डिग्री एंड 70 डिग्री मेजरमेंट है, तो वो किस तरह से होगा? सपोज ये 70 डिग्री है एंड ये 50 डिग्री है. सो सपोज दिस इज 70 डिग्री, 170 डिग्री गिवन, एंड सपोज वन एंगल मेजरमेंट इज गिवन 50 डिग्री. So suppose this is 50 degree given, so you have to tell what will be this measurement. So suppose this is a triangle ABC. It is not necessary to draw the triangle in every cases. Just you can write, we know the sum of all the angles of a triangle is 180 degree. So angle, suppose this is ABC I have taken, so angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 डिग्री. ये हम लोग को पता है. और यहाँ पे कोई भी दो एंगल दिया हुआ है, आइदर AB और AC दिया हुआ है, तो कोई भी आप कंसिडर कर सकते हो. इसको 50 मान लेते हो तो आपको ये निकालना है C, ठीक है, और अगर उसको मान लेते हो तो इसको B निकालना है. तो नथिंग इज टू वेरी अबाउट इट. सो A एंड B सपोज दिया हुआ है कि 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज प्लस एंगल C is equal to 180 degree. So angle C will be 180 degree minus 50 plus 70 is 120, right? So 120 degree. So angle C will be 180 minus 20 is 60 degree. So this angle measurement will be 60 degree. तो इस तरह से अगर एंगल दिया हुआ है तो हम लोग निकाल सकते हैं. बाकी in case of side, if it is given, then we will see in our next topic. Okay, so let's see what the next topic which we have. Yes, 60 degree is the answer. So now the topic which we have is construction of triangle. कैसे हम लोग triangle construct करते हैं, ठीक है? Till now we have learned how to measure the angle and how to draw the angle and how to find the angle. So now the topic which we have is the
construction of triangle. Because in triangle there are some parts. हमने पढ़ा था कि अगर ये एक ट्रायंगल है तो इसमें 3 साइड है और 3 एंगल है, ठीक है। तो कोई भी आप ट्रायंगल्स अगर ड्रॉ करने जाते हो, कोई 3 चीज इसमें से अगर दिया हुआ है, देन यू कैन ड्रॉ द ट्रायंगल। एज लाइक हो सकता है 2 एंगल मेजरमेंट दिया हुआ है और 1 साइड दिया हुआ है, तो आप ड्रॉ कर सकते हो। या तो तीनों साइड का मेजरमेंट दिया हुआ है तो आप कर सकते हो, या तो 2 साइड्स और 1 एंगल दिया हुआ है तो आप कर सकते हो। तो इस तरह से कुछ टर्म्स दिया हुआ रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल। सो फर्स्ट केस वी विल सी when drawing a triangle when all the sides are given. So case number 1 is drawing a triangle when all the sides are given. जब सारे साइड्स का मेजरमेंट दिया हुआ रहता है तो हम लोग कैसे एंगल ड्रॉ कर सकते हैं, दैट वी विल सी फर्स्ट। सो फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं एक्सरसाइज से ही कोई क्वेश्चन लेते हैं। कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल हुज साइड्स आर, पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 13.3 का, जिसका साइड्स दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। तो यहां पे क्या है कि सारे साइड्स का मेजरमेंट दिए हुए हैं। सो ऑल द साइड्स मेजरमेंट आर गिवन, राइट। अंकुश, युवराज, रवीश, ईसा, धनंजय, देन कांचन कुमारी मीन्स मुस्कान, देन प्रिंस, रवि रंजन एंड विद्यावानी। तुम लोग सुनेगी नहीं या सुनोगे नहीं, ठीक है। तुम लोग को पता नहीं क्या प्रॉब्लम होता है, कैमरा बंद कर देते हो। पैसा क्या है घर में जो कैमरा बंद कर देते हो? मुस्कान को देखो ड्राइंग दिखा रही है, होली मना रही है अभी वो। ओके, सो हियर इट्स वेरी इजी बिकॉज 3 साइड्स आर गिवन, तीनों साइड दिया हुआ है, सो हम लोग को ड्रॉ करना है। सो फर्स्ट स्टेप टू ड्रॉ ए ट्राइंगल व्हेन ऑल द साइड्स आर गिवन इज टू ड्रॉ द बेस मेजरमेंट। तो सबसे पहले कोई भी मेजरमेंट का हम लोग बेस ड्रॉ कर सकते हैं, आपको जो पसंद आ रहा है। If you are thinking 5 centimeter, take 5 centimeter. If you are thinking 2.5, take 2.5 or 3.5, whatever you want. Take that much measurement and draw a line first, base measurement. ठीक है, तो बेस सबसे पहले मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर हम लोग लेते हैं और स्केल का हेल्प से हम लोग 4 सेंटीमीटर का एक मेजरमेंट ड्रॉ करेंगे। सो सपोज दिस इज ए 4 सेंटीमीटर लेंथ and you can give the name as like A, B, and this is the base. So 4 centimeter, like the measurement, write the measurement 4 centimeter. So first step is to draw the base measurement of any particular given length. Okay, कोई भी given length का एक base सबसे पहले draw करनी है, ठीक है। Next step is to take the any measurement। तो ये मेजरमेंट दिया हुआ है और ये मेजरमेंट दिया हुआ है। सो विद द हेल्प ऑफ कंपास का हेल्प से आपको स्केल में एक मेजरमेंट लेना है, जो भी मेजरमेंट यहां हमारे दिए हुए हैं, ठीक है। सो यहां पे 2 मेजरमेंट है दोनों साइड का, तो वो दोनों मेजरमेंट में से आप कोई भी मेजरमेंट पहले ले सकते हो। सो यहां पे जैसे 2.5 है, सो 2.5 वी विल टेक विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो लेट अस सी,
सो यहाँ पे इस तरह से हम लोग स्केल कॉपी में रखेंगे एंड नाउ आफ्टर कीपिंग हेयर लाइक दिस वी विल चेक 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ इस तरह से 2.5 सेंटीमीटर जहां पे भी होगा स्केल में विल टेक 2.5 सेंटीमीटर, इस तरह से डिस्प्लेस करके 2.5 सेंटीमीटर विल टेक विद द हेल्प ऑफ कंपास। ओके, सो 2.5 सेंटीमीटर लेने के बाद हम लोग जो है कोई भी एक कॉर्नर में रखेंगे, आइदर हेयर और हेयर, वेरेवर वी वांट। So after taking a measurement of 2.5 centimeter, suppose this is the 2.5 centimeter length and keeping here will make a arc here, इसको arc बोला जाता है। इस तरह से कंपास का हेल्प से हम लोग आर्क एक ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट पे रख के कर सकते हो आप, ए में भी रख के कर सकते हो या बी में भी रख के कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा एक आर्क हमें मिला यहां से। सपोज हमने ए में रख के एक आर्क बनाया यहाँ पे। ठीक है, फ्रॉम हेयर आफ्टर देन वी विल टेक 3.5 सेंटीमीटर। जिस तरह से हम लोग ने 2.5 लिया उसी तरह से 3.5 भी हमें लेना है। ठीक है, 3.5 मेजरमेंट लेने के बाद स्केल से विल कीप द कंपास इन अनदर साइड, दूसरे साइड में हम लोग कंपास रखेंगे एंड अगेन विल मेक ए काट आर्क हेयर। यहाँ पे इस तरह से हम लोग आर्क ड्रॉ करेंगे ताकि जो प्रीवियसली आर्क हम लोग ने जो ड्रॉ किया था, दिस विल मीट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट होगा जहां पे दोनों मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों जहां पे मिल जाएगा दैट विल बी द मीटिंग पॉइंट, ये एक वर्टेक्स क्रिएट होगा एंड उसके बाद हम लोग ये दोनों को जो है ज्वाइन कर देंगे। दिस वन विल कनेक्ट एंड विल कनेक्ट this one also, ये कनेक्ट कर देंगे एंड दिस पॉइंट विल बी C and this is the measurement of 2.5 we have taken and this is the measurement of 3.5 we have taken. So this is how the required triangle will be like this. Okay, we cannot make a big line, we can make a big line also. Big line means whatever the length measurement will be given, that much of length we will take ना। जैसे यहाँ पे 4 के जगह पे 5 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो as per the required length it will given that much we will take। यहाँ पे क्योंकि बोर्ड है तो उतना एक्यूरेटली आपको समझा पाने में मुश्किल हो रहा है, तो अगर मान लेते हैं हम लोग का ज्यादा लेंथ अगर दिया हुआ है या 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो वट एवर द रिक्वायर्ड लेंथ विल इज गिवन दैट मच ओनली वी कैन टेक। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट वाला में है, एक मान लो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर अगर दिया हुआ है एक बेस, तो हम लोग 6 सेंटीमीटर लेंगे। ए बी मान लो 6 सेंटीमीटर एक दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे कंपास रख के जो भी मेजरमेंट अदर साइड का है, दूसरा साइड का है, यहाँ पे कंपास रखे उस तरह से कट करेंगे। ठीक है, तो जितना भी मेजरमेंट होगा उतना का कट करेंगे। उसी तरह से अदर साइड का जो मेजरमेंट होगा वो भी हम लोग उसी तरह से करेंगे। ठीक है, इन द सेम वे विल टेक द अदर साइड मेजरमेंट। सो सपोज वो थोड़ा सा कम है मान लो या ज्यादा है जो भी है, तो यहाँ पे बी में रख के we will make an arc और we will cut an arc। बड़ा होगा तो बड़ा कट करेंगे, जितना मेजरमेंट दिया होगा we will do accordingly। तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक मेजरमेंट दिया हुआ है and after then we will join these two। So अगर बड़ा में दिखाते हैं तो इस तरह से ज्यादा मेजरमेंट, जैसा मेजरमेंट दिया हुआ रहेगा it will be like that only। Okay, so suppose this। Okay, so this is the required angle। So A, B and C, suppose any measurement you take, this is suppose 5 centimeter given and this is suppose also 5 centimeter given or 5.5 centimeter given। So whatever the measurement will be given, that much first we have to take with the help of compass and compass से उतना measurement लेने के बाद जो है हमको यहाँ से कट लगाना है, एक आर्क बनाना है। ठीक है, will try to show you all with the help of copy। in copy I will try to show in next class में copy में समझाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा हो सकता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस है जब सारे साइड्स दिया हुआ रहता है, when all the sides are given। okay, all the sides measurement are given। so this is the only one case and आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, फर्स्ट केस ही रखते हैं। That's for all today। Thank you everyone and bye bye।
In your homework, you can do the example numbers 4 and 5.